اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی۔ مریم نواز اور شاہد خاقان کے خلاف عدلیہ کو مبینہ اسکینڈلائز کرنے کے الزام میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا توہین عدالت کا قانون ججز کو نہیں بلکہ مقدمے کے فریقین کی حفاظت کے لیے ہے۔ ججز کو عوامی تنقید سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ مزید کے تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین احمد آگاہ کیجئے گا، توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے؟ جی بالکل، آج صبح ہی اس درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور اب چیف جسٹس اطہر مین اللہ کی جانب سے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کا قانون ججز کو نہیں بلکہ مقدمہ کے فریقین کی حفاظت کے لیے ہے۔ ججز کا کام انصاف کی فراہمی ہے اور ججز کو عوامی تنقید سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جوڈیشل آفس چھوڑنے پر جج عدلیہ اور عدالت کا حصہ نہیں رہتا اور ریٹائرمنٹ کے بعد جج کا سٹیٹس پرائیویٹ شہری کا ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر میں لکھا ہے کہ ریٹائرڈ جج آرڈیننس 2003 کے تحت عدلیہ کا حصہ باقی نہیں رہتا، جبکہ ریٹائرڈ جج عدت کے عزت پر پرائیویٹ شہری کے طور پر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت ایک فیصلے میں کہہ چکی کہ ججز قانون سے بالاتر نہیں ہیں اور جواب دہ ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جج بینچ کا حصہ نہیں رہتے اور ان کا درجہ عام شہری کا ہوتا ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے جاری کیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا حسین احمد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے ڈسکا ضمنی الیکشن چوری کرنے اور دھاندلی کرانے والے حکومتی عہدیداروں اور سرکاری افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کے نام خط میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کا ووٹ چوری کر کے عوامی رائے کی توہین کی گئی۔ اسلام آباد سے حسین احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کے نام 23 نومبر 2021 کو شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط میں ڈسکا الیکشن چوری میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پس پردہ رہ کر انتخابی دھاندلی کرانے، غیر قانونی ہدایات دینے والے وفاقی اور صوبائی حکومت کے ذمہ داروں اور الیکشن عملے و افسران کے خلاف الیکشن ایکٹ کے سیکشن 191، سیکشن 184، 186 اور 187 کے تحت سزا کا عمل شروع کیا جائے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ NA 75 سیالکوٹ ضمنی الیکشن پر فیکٹ ٹو فائنڈنگ رپورٹس میں پریزائڈنگ افسران، انتخابی عملہ، DC اور DPO سیالکوٹ مس کنڈکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے مرتکب قرار پائے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکاری افسر کی رہائش گاہ پر حکومتی اہلکاروں کے ساتھ مسلسل اجلاس ہوتے رہے۔ ان ملاقاتوں میں ایک مشیر، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا افسر بھی شریک ہوتے رہے۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ انتخابی دھاندلی اور ووٹ چوری سے پاکستان کے جمہوری نظام پر دھبا لگا ہے۔ سیاسی جماعت کی مشاورت سے ایکٹ، رولز، ضابطہ اخلاق، طریقہ احائے کار میں ترامیم کی جائیں تاکہ آئندہ ڈسکا جیسی بے ضابطگیاں نہ ہوں۔ حسین احمد، 92 نیوز، اسلام آباد۔ لاہور کے حلقہ NA 133 کا ضمنی انتخاب محکمہ داخلہ نے رینجرز تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن پنجاب نے محکمہ داخلہ کو رینجرز تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ لاہور کے حلقہ NA 133 کا ضمنی انتخاب محکمہ داخلہ نے رینجرز تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن پنجاب نے محکمہ داخلہ کو رینجرز تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے دنیا میں ہتھیاروں کی بجائے بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس کا بیانیہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ بیانیہ میں وہی فریق کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دماغ کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ جہاں پیسہ اور وسائل تھے وہاں قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اب دنیا کو ایک مستحکم معاشرہ اور مستحکم نظام تشکیل دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ اب وارز جو ہیں وہ ویپنز کی وارز کم ہیں اور اوپینینز کی وارز زیادہ ہے۔ اوپینینز میں وہ پارٹی جیتتی ہے جو اپنے دماغ کا بہترین استعمال کر سکے۔ کس طرح سے آپ اپنی کہانی کتنی اچھی پیش کر سکتے ہیں وہ کہانی جیتتی ہے۔ آپ کی سٹوریز کی لڑائیاں ہیں کہ آپ اپنی کہانی کیسے پیش کرتے ہیں۔ لوگ جاتے تھے جہاں پہ پتہ چلتا تھا پیسے ہیں، وسائل ہیں، وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ آپ نے ایک سٹیبل سوسائٹی، سٹیبل سسٹم کریٹ کرنا ہے۔
سینٹ قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر توانائی حماد اظہر کی غیر حاضری پر کمیٹی ارکان نے اظہار برہمی کیا۔ سینیٹر افنان اللہ نے کہا حماد اظہر جس وزارت میں بھی گئے ان کی کارکردگی خراب رہی۔ قرۃ العین مری نے چیئرمین کمیٹی کو اس معاملے پر خط لکھنے کی تجویز دی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے رانا طارق سے۔ رانا طارق، پیٹرولیم کے اجلاس کے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر توانائی حماد اظہر کی بار بار کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اراکین نے کہا کہ جس میں سینیٹر سعدیہ عباسی کا کہنا تھا کہ آج تک وزیر توانائی اس کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آیا، اتنی اہم وزارت ہے اور حماد اظہر جو ہیں وہ اجلاس میں آتے ہی نہیں۔ اس پر سینیٹر افنان اللہ نے کا کہنا تھا کہ حماد اظہر جس وزارت میں بھی گئے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے ہمیشہ خراب رہی ہے۔ 1.5 ماہ بعد اجلاس ہو رہا ہے، ایسا نہ کریں، جس پر اس پر کہنا تھا چیئرمین کمیٹی کا۔ اور سینیٹر قرۃ العین مری کا کہنا تھا کہ چیئرمین کمیٹی کو چاہیے کہ اس معاملے پر وزیر اعظم کو خط لکھیں۔ ہم جو ہے وہ بیوقوف ہیں کہ کراچی سے یہاں پر اجلاس کے لیے آ گئے ہیں اور وزیر یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ اس پر سیکرٹری پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ رات دیر تک ڈیلر ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہماری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے۔ ہم منسٹر صاحب کو کھانے پہ نہیں بلا رہے، بلکہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں بریف کریں کیا مذاکرات ہوئے، کیا وزارت کے اندر چل رہا ہے، کیا ملک میں گیس کی شارٹیج ہے، اس وقت لوگ سڑکوں پر پھر رہے ہیں، لوگوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، اس پر جو ہے وہ بریف کریں۔ ہم ان کو کوئی شوقیہ طور پر نہیں بلا رہے، ان کا کام ہے کمیٹی کو آ کے بریف کریں۔ جی بہت شکریہ رانا طارق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 52 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر قیمت 175 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ آج ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ایک وقت میں 1 روپے 52 پیسے مہنگا ہو کر 176 روپے 50 پیسے کی سطح پر بھی آ گیا تھا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 52 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت 175 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ آج ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ایک وقت میں 1 روپے 52 پیسے مہنگا ہو کر 176 روپے 50 پیسے کی سطح پر بھی آ گیا تھا۔ افغانستان جانے والے مسافر سے تورخم بارڈر پر امریکی ڈالرز برآمد ہوئے ہیں۔ بارڈرز حکام کے مطابق چیکنگ کے دوران 20,400 ڈالر برآمد ہوئے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ذیشان کاکا خیر سے۔ ذیشان، اس متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، افغانستان جانے والے مسافر سے تورخم بارڈر پر امریکی ڈالرز برآمد ہوئے ہیں۔ شہری پاکستان سے افغانستان جا رہا تھا۔ چیکنگ کے دوران بارڈر حکام کے مطابق ان سے جو ہے 20,400 امریکی ڈالرز برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سندھ میں بلدیاتی ایکٹ ترمیمی بل کا مسودہ 92 نیوز نے حاصل کر لیا۔ شہری دیہی علاقوں کے لیے الگ الگ بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں 7 DMCs ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے آگاہ کریں گے وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے اور آج سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مجوزہ ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت نے کراچی میں 7 DMCs کو ختم کر کے ٹاؤن سسٹم بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سابق صدر مشرف کے دور میں بھی کراچی میں بلدیاتی نظام کے تحت ٹاؤن سسٹم لگائے گئے تھے۔ صوبائی حکومت نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام عباسی شہید اسپتال، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سمیت تمام جو اسپتال، ڈسپینسریز، میٹرنیٹی ہوم اور تعلیمی ادارے صوبائی حکومت کی تحویل میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میئر کا انتخاب ہوگا وہ ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ارکان کی اس میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کریں گے۔ مجوزہ بلدیاتی ایکٹ کے تحت سندھ میں کھٹکھر، میر خاص، لاڑکانہ، حیدرآباد میں بھی ٹاؤن بنائے جائیں گے، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن کی جو بھی ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن ہوں گی وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام ہوں گی۔ اس بلدیاتی ادارے صحت، تعلیم اور پرائمری ہیلتھ کا شعبہ بھی صوبائی حکومت کی تحویل میں دیا گیا ہے، جبکہ پیدائش و اموات کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا کا اختیار اور فیس کی وصولی بھی بلدیاتی اداروں سے واپس لے کر
सूबाई हुकूमत के मातहत कर दी गई है। तो बल्दियाती एक्ट में तरमीम के तहत मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की कम अज कम कराची में 7 DMCs खत्म करने का फैसला किया गया है। शुक्रिया आपका वकास बाकिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर एक हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 400 लोग लगाए और इमारत को गिराए। अदालत ने मुदाखलत करने पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम को झाड़ पे ला दी। इस्तफसार किया कि आपकी इस इमारत में क्या दिलचस्पी है। कराची से अरशद बेग की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने पेशरफ रिपोर्ट्स और तस्वीर अदालत में जमा करवाई। बताया कि ग्राउंड फ्लोर समेत 3 फ्लोर की मुकम्मल दीवारें गिरा दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बिल्डिंग नीचे से गिराने का क्या तरीका होता है, कब तक गिराने का अमल मुकम्मल होगा। कमिश्नर कराची ने बताया कि 200 लोग काम कर रहे हैं, इमारत गिराने का कोई वक्त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि 400 लोग लगाएं, एक हफ्ते में इमारत गिराएं और रिपोर्ट पेश करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की पेशी पर अदालत बरहम हो गई। कहा कि आप किस हैसियत में पेश हुए हैं। हाफिज नईम बोले, मुतासिरीन को मुआवजा दिलवाए बगैर ऐसा नहीं करें। अदालत ने हाफिज नईम को झाड़ पिला दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ कोई सियासत नहीं चलेगी। आपको क्या दिलचस्पी है इस इमारत में, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा, कराची के हकूक दिलवाने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस शहर पर कब्जा पीपल्स पार्टी और MQM ने सबसे ज्यादा किया है। ये मसला कराची की 3 करोड़ आबादी का है। जो हम फर्ज था हमारा, हमने वो पूरा किया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मजमूई तौर पर कराची के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। हम इंशाअल्लाह नस्ला टावर ही नहीं, कराची में जितने मुतासिरीन हैं उनके लिए जिद्दोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है। सुप्रीम कोर्ट बड़े मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का असल मास्टर प्लान तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम रफाही प्लाटों पर कमर्शियल सरगर्मी या तामीर न होने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहादुराबाद कराची कोऑपरेटिव सोसाइटी में रफाही प्लॉट्स पर कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिनिस्ट्री वर्क्स ने तमाम सोसाइटीज के लिए लेआउट प्लान गायब कर दिए। इन तमाम लेआउट को अब तब्दील किया जा रहा है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का हाल तो ये है कि कोई चल नहीं सकता। ये शहर रहने के लिए छोड़ा नहीं, हर जगह को कमर्शलाइज कर दिया गया है। मुल्क में काला पैसा ज्यादा है। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो गयी। लोगों ने इंडस्ट्रीज खत्म करके पैसा जमीनों पर लगा दिया। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। हर कोने में बिल्डिंगें और दुकानें बना दी गयी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि वजारत वर्क्स ने तो हिल पार्क भी उठाकर बेच दिया था। अदालत ने आइंदा रफाही प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मी या तामीर न करने का हुक्म सादिर कर दिया। PECHS में रफाही प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर अदालत सदर PESH पर बरहम हो गई। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, आप अदालत और अदालत में होने वाली कार्रवाई का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत ने PESHS का असल मास्टर और लेआउट प्लान तलब कर लिया। कहा कि मास्टर प्लान और दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद ही हुक्मनामा जारी करेंगे। अरशद बेग, 92 न्यूज, कराची। कराची में इमारतें गिराए जाने के खिलाफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने कारोबार बंद कर दिया। रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटों और सरिये समेत तमाम बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे से काम करना मुश्किल हो गया है। अबाद ने धमकी दी है कि मसाइल हल न हुए तो मुल्क भर में शटर गिरा देंगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से हर शोबे से मुंसलिक शख्स परेशान। हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। मुल्क में खाने पीने की अशिया के साथ साथ बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से घर बनाना भी ख्वाब बन गया। रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटों और सरिये समेत तमाम बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोलियम डीलर्स ने गुज़िश्ता रोज कारोबार बंद रखा। आज बिल्डर्स और डेवलपर्स एसोसिएशन ने भी शटर गिरा दिए। कराची में तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर दिया गया। कहते हैं तामीराती सामान बहुत महंगा हो चुका, ऐसे में कारोबार नहीं चल सकता। कल से आबाद ने अभी हमें था मीटिंग में तय ये किया कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस तरह हम कारोबार कर ही नहीं सकते ना। जब $600 इंटरनेशनल मार्केट में सरिये की कीमत गिर के $250 हो गई थी, तो आज वो $750 है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये रेगुलेटरी ड्यूटी हटनी चाहिए। ओहदेदारान का ये भी कहना है कि कराची में बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। हर आदमी खौफजदा है। अगर तामीर शुदा इमारतों के इजाजतनामे में कोई गलती है तो चेक करना हुकूमत का काम है। हुकूमत से ये कहा है कि जब आपकी NOC हम लेते हैं और अरबों पे खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट जब बनता है और उसके बाद उनको कहा जाए
कि उसकी एनओसी को कोई वैल्यू नहीं है और वो बिल्डिंगें टूटना शुरू हो जाए और वो हमारे लोग हमारे घरों पे आए कि हम पैसे दें, तो हम ये कारोबार कैसे कर सकते हैं? हम अप्रूवल क्यों ले? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि इस तरीके से कि हम कारोबार को जारी रख सकें। अहदेदारान ने धमकी दी है कि पहले मरहले में अभी सिर्फ कराची में काम बंद किया है, हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो मुल्क भर में कारोबार बंद कर देंगे। और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली का रंगारंग इवेंट जारी है। मुकाबले के दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड जारी है। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड में साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली को 1 सेकंड के फ़र्क से सबकत हासिल है, जबकि ज़ैन महमूद दूसरे नंबर पर रहे। दूसरी जानिब एक और मंजे हुए ड्राइवर मीर नादिर मगजी की गाड़ी का टायर ट्रैक पर ब्रस्ट हो गया। थल जीप रैली में मुकाबलों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फारूक शेख से। जी फारूक, बताइएगा जीप रैली में कौन सा ड्राइवर फेवरेट समझा जा रहा है और अब तक के मुकाबलों में कौन किस पोजीशन पर है? जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो छठी थल जीप रैली है इसकी 4 रोज़ के इवेंट्स हैं और आज दूसरे मरले का आगाज़ हुआ था, जिसके अंदर क्वालिफाइंग राउंड जो था एक 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था और इस ट्रैक के ऊपर अब तक जो प्रीपेड कैटेगरी सबसे बड़ी रेस होती है और सबसे बड़े मुकाबले के अंदर जो साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली हैं जो अपने साबका एजाज़ का दिफा भी कर रहे हैं, वो 1 सेकंड के फासले से सबकत हासिल किए हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर ज़ैन महमूद हैं जिन्होंने जो ये ट्रैक था 1 मिनट और 32 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया है। अगर इसी तरह हम बात करें एक और जो बड़े नामवर रेसर हैं मीर नादिर मगसी, वो हादसे का शिकार हुए हैं और उनकी जो गाड़ी थी वो ट्रैक के ऊपर उनका टायर ब्रेस्ट कर गया, जिसके बाइस उन्होंने जो अपना ट्रैक है वो भी मुकम्मल किया और 1 मिनट 55 सेकंड के अंदर उन्होंने फिनिश लाइन को अबूर किया था। इसी तरह दीगर जो हम बात करें यहाँ पर जो स्टॉक कैटेगरी की जो मुकाबले थे उसके लिए जो क्वालिफाइंग राउंड के अंदर यासर जो हैं उन्होंने 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर यहाँ पर अपना ट्रैक कंप्लीट किया। इसी तरह दीगर रेसर्स भी हादसात का शिकार होते रहे इस मुश्किल और दुश्वारगार जो थल का जो ट्रैक है उसके ऊपर। एक और जो थे मुजतबा कियानी, उन्होंने अपना जिस वक्त फिनिश लाइन अबूर की है तो उनकी गाड़ी के इंजन के अंदर आग लग गई। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली का रंगारंग जारी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और अभी बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। आप रहिए 92। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट सारा बॉयक से मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा बरतानिया जारी, स्कॉटलैंड की कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। गुज़श्ता रोज़ चौधरी मोहम्मद सरवर ने मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट सारा बॉयक से भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत की गई। इस मौके पर मसला कश्मीर, अफगान अमन अमल, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग का मामला भी ज़ेर बहस रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने रुकने पार्लियामेंट को बताया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे और अमन के क्याम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चौधरी मोहम्मद सरवर का ये भी कहना था कि दुनिया में माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अमन का क्याम इंतहाई ज़रूरी है। अगर दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ देगी तो अफगानिस्तान की सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी से पैदा हालात दहशत गर्दी जैसे खतरनाक होंगे। दुनिया अफगानिस्तान को मशरूत नहीं बल्कि गैर मशरूत इमदाद दे। स्कॉटिश रुकन पार्लियामेंट सारा बॉयक ने अफगान अमन अमल और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए गैर मुल्की फोर्सेज और शहरियों की भरपूर मदद की, जबकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भी पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मुलाकात में स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन चौधरी सरवर के साहबजादे और अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के कायद अनस सरवर भी मौजूद थे। स्कॉटिश रुकन पार्लियामेंट के ऑफिस में गवर्नर पंजाब ने तासराती किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। बाद में स्कॉटिश रुकन पार्लियामेंट के साथ फोटो सेशन भी हुआ। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह देसी ने एक बार फिर से वजीर आज़म बोरिस जॉनसन और टूरी हुकूमत को सवालों जवाब के सेशन में लाजवाब कर दिया। उनका कहना था कि वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने 2 साल कबल इस्लाम फोबिया के हवाले से आज़ादाना इंक्वायरी का ऐलान किया था, मगर ताहाल इस पर कोई इकदाम नहीं उठाए गए। टोरी पार्टी के अंदर इस्लाम फोबिया पर इंक्वायरी करवाने का वादा भी किया गया, लेकिन तमाम वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी किस्म का अमली इकदाम दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
But Mr. Chairman, we have been here before, many times. Islamophobia is not a new phenomenon, but one that has sadly entrenched itself into significant segments of our society. As noted by the Muslim Council for Britain, 70% of Muslims have experienced religious-based prejudice within the last 12 months, and just under half of all religious hate crimes recorded by police in 2020-2021 were Islamophobic. And I'd also highlight that abuse can happen to Muslims or even those perceived as looking like Muslims, such as turbaned Sikhs like myself. Mr. Chairman, I personally called on the Prime Minister to do more over 2 years ago now, asking for an apology for his derogatory and racist remarks describing already vulnerable Muslim women as looking like bank robbers and letterboxes, comments which led to a 375% spike in hate crimes and more widely showed that to openly abuse Muslim women was acceptable, all without an apology, except for a half-hearted one during the heat of an election and only when pressed to do so. And this is characteristic of the government's response: denial, delay and avoidance. And given the increased prevalence of such Islamophobic incidents within their party, where is the independent inquiry into Islamophobia, as promised on national television by the Prime Minister and his now Health Secretary? In fact, when the APPG on British Muslims, of which I am proud to be a Vice Chair, agreed upon a definition for Islamophobia, all major parties accepted and adopted it with one notable exception: the Conservative Party. We cannot simply accept this unacceptable status quo. If we do, we fail millions of Muslims, because without action, this is a message Muslim communities are hearing. I hope the Honourable Minister, for whom I have time, I hope that she has come with more than just warm words, because the persistent failure of the government, and in particular the Prime Minister, has real consequences and fails the people of our country. वेल्श एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन हेरिटेज के ज़ेर एहतमाम कार्डिफ के मकामी रेस्टोरेंट में इकबाल डे की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वेल्स की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी न सिर्फ मुस्लिम उम्मा पैरवी करती है बल्कि दीगर कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले भी फॉलो करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वेल्स में दीगर कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इकबाल डे की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें वेल्स की अहम शख्सियात को मदऊ करके इकबाल के फ़लसफ़ा हुदी को बयान करने के साथ साथ उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी शुरका को आगाही दी गई। प्रोग्राम का आगाज़ लब पर आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी से हुआ। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेहमान खसूसी डिप्टी कौंसलर जनरल बर्मिंघम सरदार मोहम्मद हटक ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक इस मुल्क से है जिधर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई। आज पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और फ़लसफ़ा की मिसाल दी जाती है। इस तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जहान हतीब और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मुकाम रखते हैं जिनके फ़लसफ़ा और फ़िक्र से हम अपनी शख्सियत और टैलेंट में निखार पैदा कर सकते हैं। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए फ़लसफ़ा इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। एशियन हेरिटेज ने ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर अल्लामा इकबाल के हवाले से पहला इवेंट था और इसमें यहाँ लोकल कम्युनिटी की प्रेजेंस और साउथ एशियन ओरिजिन लोगों की प्रेजेंस अल्लामा इकबाल से एक खास मोहब्बत को जाहिर करती है। I am delighted to be here to be celebrating the incredible Allama Iqbal, and I really hope that in future events that we're able to bring more youth to our events to be able to inspire them, drive them, and make them the future leaders of tomorrow. Tonight we are through the Welsh Association of South Asian Heritage for the first time celebrating Iqbal Day in Wales. Allama Iqbal is not known or recognized by the locals. So tonight, by holding this event, we have portrayed Allama Iqbal's life not only to the local community. Today's event exemplifies this culture, but also has brought another dimension to it, because I have heard about a poet of whom I had never heard. And this man not only spoke his own language and wrote poetry in his own language, he understood the language of English
well enough to understand the poems of John Milton. To know that our children and young people here tonight are learning about the significance of the spiritual and political ignorance of that amazing man, Sir Muhammad Alam Iqbal. I find it a privilege to be here tonight to celebrate Iqbal Day, invited by Dr. Akram Beg. It's a real privilege to learn about the culture and how this great writer and poet has influenced. It's been a special, very special evening. We've had some wonderful addresses and talks and we've all learned so much. पाकिस्तानी शुरका का मजीद कहना था कि दीगर कम्युनिटीज़ को अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल पैरा देखकर हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी नयाद आयरिश विजुअल आर्टिस्ट आमना वलायत के मुनफरद फनपारों ने आयरिश म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में जगह बना ली, जो आइलैंड में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एजाज़ से कम नहीं। आमना वलायत ने यह एजाज़ कैसे अपने नाम किया, तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डुबलिन के आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट को यूरोप के आला तरीन आर्ट म्यूजियम का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि इनके काम को इस मुकाम के अंदर जगह मिल सके। पाकिस्तानी नयाद विजुअल आर्टिस्ट आमना वलायत के फनपारों को आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में जगह दे दी गई, जो न सिर्फ आमना बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फख्र की बात है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पहली दफा अपने फनपारों को लगाने की इजाजत मिल सकी है। इस हवाले से इमारत के लान में छोटी सी तकरीब सजाई गई, जिसमें मुकामी शहरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की और आमना वलायत को ये मुनफरिद आज़ाद मिलने पर सराहा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने आमना वलायत की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। I'm really happy to see my work in a totally different context. Like the work that's shown of mine was made in 1994. And it's so wonderful to see it. Celebrating all the projects that have been happening over the pandemic. Some things are closing soon and some things are opening, so we thought it would be a great moment to bring all the artists together and to finally celebrate. Great to have this show open and great to have this celebration of it. It's been a long time since people got together. But the exhibition as well is a really important kind of chance for the museum to kind of talk about its collections. Yeah, it feels great to be here. There's like such a good buzz around, you know, so many people showed up. I really enjoyed. आमना वलायत ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपनी कामयाबी पर अज़हार शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि वो वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो इस शो का हिस्सा हैं। It's a great honor for me to be the part of this show because this show is very important in a way that it's covered the 30 years of Irish art scene and many prominent artists are the part of this event and I am one of them. It's a great honor for me and I'm the only Pakistani artist who is being considered for this show. आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में साल भर के लिए लगाई गई एग्जीबिशन इस म्यूजियम के 30 बरस मुकम्मल होने पर लगाई गई है और ये पिछले 30 बरस के काम को कवर करने के साथ साथ आयरलैंड की आर्ट और कल्चर को पूरी दुनिया के सामने पेश करने के मकसद के तौर पर लगाई गई है। It's an honor for Pakistani community and also for South Asian community that Amna Walayat she showcased her work tonight at Irish Museum of Modern Art and we are witness of all these things that she is a gem and her wonderful work is making our community proud here in Ireland. Faisal Mirza, 92 News, Dublin, Ireland. बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का सिलसिला जारी। समुद्री रास्ते से बरतानिया पर गैर कानूनी तारकीन की यलगार के तसलसल पर कौंसलों को महाजरीन बच्चों की निगाहदाश्त की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। मंसूबे के तहत मुस्तकबिल करीब में कौंसलर्स को कहा जाएगा कि वो तारकीन वतन बच्चों को निगाहदाश्त के निज़ाम में लाएं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तारकीन वतन की जानिब से इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन के असरात को कम करने के लिए रज़ाकाराना स्कीम की बुनियाद पर गैर साथी तारकीन वतन बच्चों को पहले बरतानिया में मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब 200 से ज़्यादा कौंसलों को मजबूर किया जा सकता है कि वो तारकीन वतन बच्चों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी उठाएं। दूसरी जानिब फ्रांस ने गैर कानूनी तारकीन वतन की नकलो हमल रोकने के लिए फ्रांसीसी साहलों पर गश्त करने की बरतानवी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। फ्रांस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बरतानिया को फ्रांसीसी सरहदों पर गश्त करने की
इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस इकदाम से उसकी खुद मुख्तारी को हदशात लाहिक हो जाएंगे। रवां माह चैनल अबूर करके बरतानिया दाखिल होने वाले तारकीन वतन की तादाद 4000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि रवां साल मजमूई तौर पर 25,000 के करीब तारकीन वतन बरतानिया में दाखिल हो चुके हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में मुमकिना मुश्तरका गश्त के बारे में पूछे जाने पर सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब में कहा कि हम तमाम ऑप्शंस पर तबादला ख्याल कर चुके हैं, मुतबादिल बहरी गश्त का मामला ही क्यों ना हो। सीनेटर रेज ने खबरदार किया है कि इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन की रिकॉर्ड तादाद से निमटने में IP तर्ज की नई सियासी जमात के अरूज को हवा दे सकती है। बाज़ कंजर्वेटिव शख्सियात के दरमियान ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि इस मामले पर अदम फालियत दाएं बाजू की एक नई सियासी कुव्वत के उभरने का बायस बन सकती है। और अभी बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए तकरीब हुई, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौक़ार ने की। तकरीब में यूरोप से समन शाह और बरतानिया से गज़ल अंसारी ने शिरकत की। सदारती एवॉर्ड याफ्ता शख्सियत जलाल सोइडान भी तकरीब में शरीक हुए। अदबी रंगों से सजी तकरीब का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट से। जो मेरे दिल में रहा फूल में खुशबू की तरह, वो कली बन के भी खिल जाए, ज़रूरी तो नहीं दिल जिसे चाहे। तुर्की में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का किरदार इंतहाई अहम है, जहाँ शोबा उर्दू के सदर प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौक़ार उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत का न सिर्फ इजहार करने में मसरूफ़ हैं, बल्कि अमली तौर पर भी इक़दामात उठाते रहते हैं। तुर्की में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़दा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौक़ार ने की। तकरीब का मकसद तुर्की में उर्दू शायरी को मुतारफ़ कराना और तुर्क शहरियों को उर्दू ज़ुबान सीखने की तरग़ीब दिलाना था। तकरीब में 2 ख़वातीन शोरा कराम को ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जिनमें से समन शाह का ताल्लुक यूरोप जबकि गज़ल अंसारी का ताल्लुक बरतानिया से था। ख़वातीन शोरा कराम ने उर्दू ज़ुबान व अदब ख़ास तौर पर शायरी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। तेरा मुझसे खफा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, वाह। बताऊं क्या कि अब क्या क्या, बताऊं क्या कि अब क्या क्या मुझे अच्छा नहीं लगता। तकरीब में तुर्क तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। सदारती अवार्ड याफ्ता जलाल सोडान और ज़की करादाश भी तकरीब का हिस्सा रहे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि तुर्की में उर्दू के फ़रोग़ के लिए प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौक़ार का बड़ा किरदार है। फ्रांस की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उर्दू की तालीम के लिए ख़ुसूसी मराकज़ कायम हैं, जबकि बरतानिया में भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए भरपूर काम जारी है। अदबी तकरीब में ख़वातीन शोरा कराम ने अपना कलाम पेश करके तकरीब की रौनक दुबाला कर दी। खूबसूरत शायरी पर हाज़रीन महफल ने दिल खोल कर दाद दी। जब प्यार से मुझे बुलाओगे तब दौड़ के मैं तो आऊंगी, जब प्यार से मुझे बुलाओगे तब दौड़ के मैं तो आऊंगी, तब पायल मेरी छनकेगी, पायल का शोर तो होगा ही। तेरी दुनिया से क्या लगाऊं दिल, तेरी दुनिया से क्या लगाऊं दिल, रूह प्यासी ने घेर रखा है। होश की बात क्या करे कोई, बदहवासी ने घेर रखा है। होश की बात क्या करे कोई, बदहवासी ने घेर रखा है। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर खलील तौक़ार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और उर्दू ज़बान से अपनी वाबस्तगी के हवाले से यादें भी ताज़ा की। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इकनॉमिक अफेयर्स उमर अयूब खान और रूस की वज़ीर बराए एनर्जी निकोलाई का पाइप फैक्ट्री TMK का दौरा किया। वफाकी वज़ीर बराए इकनॉमिक अफेयर्स उमर अयूब खान और उनके वफ़द का दौरा रूस जारी है। वो रूस के शहर में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए रूस में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रूस के शहर यकांतनबर्ग में पाइप फैक्ट्री का दौरा किया। ये रूस की मशहूर पाइप फैक्ट्री है, जिसको दुनिया के अहम तरीन गैस पाइप बनाने का एजाज़ हासिल है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रीम गैस पाइप के मंसूबे पर मुआहदे की सूरत में इम्कान है कि पाइप इसी फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। रूस के शहर एकांतरनबर्ग में रूस बिजनेस कौंसिल ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताउन के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब खान ने शिरकत की। यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मिखाइल कोज़लोफ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदगी मोहसिन शेख ने की। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर शफ़क़त अली खान
پاکستانی سفارت خانے کے منسٹر ٹریڈ اور سرمایہ کاری ناصر حامد اور دیگر پاکستانی حکام اور روسی حکام نے شرکت کی۔ وزارت اقتصادی ترقی اسرافیل آر علی خان اور نقیتا بوزافنوف MOU پر دستخط کیے۔ میخائل کوزلوف اور محسن شیخ نے کریسنٹ گروپ اور کالونی گروپ کے نمائندوں کے ہمراہ یورال CCI میں میٹنگ کی، جس میں تجارتی تعاون کے نئے مواقع اور روسی مارکیٹ میں پاکستانی کمپنیوں کے لیے نئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان وسطی ایشیا اور روس کے ذریعے نئی تجارتی راہداری کی تعمیر پر موجودہ بین الحکومتی مذاکرات روس اور اسلام آباد کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری ایک اچھا اقدام ہے۔ اور ابھی بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا۔